ही इज जस्ट अ रबर स्टैम्प? क्या सच में इस पद को, इस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को सच में पावर्स मिली भी हैं, या बस एक ये सील की तरह है कि बस साइन कर दिया, एक रबर स्टैम्प जैसे होती है? तो इसके बारे में सोचना है. यू हैव टू पॉन्डर. यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर प्रोस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर कॉन्स. अब हमको यही इस ऑफिस को अच्छी तरह से समझने के बाद आपको अपने आप समझ आएगा. जैसे कुछ केसेस को देखते हैं तो लगता है वेयर ही इज बाउंड कि ये रबर स्टैम्प ही है. कहीं देखते हैं जहाँ पे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं तो लगता है पावरफुल है. तो कैसे इसको हैंडल करोगे, देखते हैं. यू कैन राइट डाउन योर पॉइंट्स, यू कैन टेक अ मिनट, और जहाँ भी बैठे हो अपने पेपर पे लिख सकते हो. एक जस्ट ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन. एक जगह लिखो पावरफुल ऑफिस, एक जगह लिखो रबर स्टैम्प, एंड टेक अ मिनट. आई एम गिविंग यू अ मिनट. अपने आप पॉइंट्स लिखो. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू थिंक कि क्या पावरफुल है. उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगी, यू कैन टिक इट एंड यू कैन सी व्हाट पॉइंट्स यू लेफ्ट एंड व्हाट वाज देयर. कि डिस्कस करेंगे तो गड़बड़ होगा. सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, डू इट. The question is, the office of president is powerful or just a rubber stamp? So I'm saying just draw a line in between and एक जगह लिखिए powerful office, एक जगह लिखिए rubber stamp, and then try to recollect आपने जो समझा है. Yes, Tushar. Ma'am, though the constitution makers had a very clear bias towards the parliamentary form of government, but they wanted a person like president where the person will be neutral and he will look after the Union of India. In other countries like USA, the president is the head of government as well as head of state. But in India, president is only the head of state. Yes. In fact, in USA, if the government loses the confidence, president remains in power because he is also the head of the state. But in India, the president has a fixed term until and unless he is impeached. Despite of all these facts, there have been a number of powers allotted and a number of obligations on President of India. For example, the powers we can count as he has the power of pocket veto, the second power which we can account is when when in an assembly election no party got a clear majority, then he has the discretion to invite a leader who he is concerned that can form and give a stable government, whereas the obligations can be stated as the 42nd Amendment Act put a huge pressure on president to follow the Council of Ministers advice, and there are no powers in regard of money bills in case of president. And ma'am, Yes, Tushar, you are
Very right and rightly explained. May I know if this is this is going to be your first attempt, or you have read it before? Ma'am, I will be appearing in 2022 and that will be my first attempt. Okay, so is your background, are you a graduate in political No science? ma'am, no ma'am, I am pursuing my graduation. I am third year student in political science Okay, honors. so your understanding of the concepts is really good. I believe you read the context and the text very clearly and in depth. That is a very good exercise, because I have seen every time you answer, the answers are well aptly addressing the question. So kudos, very good. And Thank you ma'am. बस थोड़ी सी दिक्कत इकोनॉमिक्स में होती है, बाकी तो I like all of this. क्या बस थोड़ी सी दिक्कत इकोनॉमिक्स में होती है, बाकी तो सर तू जब तक ठीक हो जाएगा ना, तेरे को बस खाना खा के आना, कुछ नहीं करना है। और अगर मेरे असाइनमेंट खत्म नहीं हुए, मैं तो गाँव जा रही हूँ। all right, so let me just take you through the answer. So I have divided it into two parts. One is from the point of view of the constitution. Okay, so see, from the view of constitution हम क्या देख रहे हैं कि constitution ने बहुत सारी powers को clearly बताया है. It has provided for the executive, legislative, financial, military, diplomatic and judicial powers. Also the discretionary powers that we have read. Right to use veto, the three vetoes that the president has, the absolute, the suspensive and the pocket veto. तो ये उस ऑफिस को पावरफुल बनाते हैं. Though the Article 74 particularly after 1978 bound the president by the advice, but it has explicitly brought down his areas of discretion, thus making him a kind of nominal head. तो इस पॉइंट को जब हम देखते हैं कि रिकंसिडरेशन के बाद अब वो चाहे विद अमेंडमेंट आए या विदाउट, ही इज बाउंड एक्चुअली. सिर्फ एक बार वो उनको फ्रीडम दिया गया है, अदरवाइज ही इज बाउंड बाय द एडवाइस, है ना. तो इसको सुनकर जैसे काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया, मैसेज किया फिर कि मैम ये तो फिर एक नॉमिनल हेड हो गया, रबर स्टैम्प हो गया. देन यस, यू कैन से कि इस वाले पॉइंट से हमको ऐसा लगता है कि ही इज अ नॉमिनल हेड. ठीक है. देन स्कॉलर्स डू आर्ग्यू दैट प्रेसिडेंट हैज ह्यूज पावर्स, जो कि जैसे कि डिस्क्रिशनरी पावर्स, एंड इफ ही कम्स टू मिसयूज दोस पावर्स, अगर प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पोस्टल अमेंडमेंट बिल पे पॉकेट वीटो को यूज किया था, है ना. अगर उन्होंने पॉकेट वीटो यूज नहीं किया होता, जस्ट इमेजिन द एंटायर प्रेस, द एंटायर मीडिया वुड हैव बिकम अ पपेट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक. तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को बहुत इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं. अगर प्रेसिडेंट की मंशा ही गलत है, अगर वो उन पावर्स को मिसयूज करने लगे, तो क्या आप प्रेसिडेंट की किसी डिसीजन को अंडू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना. फिर उसको हटाने का बस एक ही तरीका है, वो है इम्पीचमेंट. और इम्पीचमेंट को भी, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को क्योंकि आपने आज पढ़ा ही है, तो वो काफी फ्रेशली ध्यान होगा. हमने पढ़ा है कि इम्पीचमेंट के लिए आफ्टर सेंडिंग द 14 days नोटिस, the motion has to be passed by both the houses. ठीक. अब दोनों हाउसेस को सपोज करो प्रेसिडेंट समन ही ना करे, सेशन ही ना बुलाए, तो वो अपनी इम्पीचमेंट को भी कम से कम कितने टाइम तक, 6 महीने तक रोकना चाहे तो रोक सकते हैं कि नहीं. He can delay that impeachment also for at least 6 months, but not after 6 months, because 6 months के होते ही it is the duty the houses have to meet, right? However, thanks to the maturity of our democracy and a very active and vigilant judiciary, that such a situation has never occurred. We have never seen the malintentions or malefied intentions of the president or parliament or judiciary. हमने ऐसा नहीं देखा. ठीक है, ऐसा कुछ होते हुए we have not seen that. And if we see it from the makers of the constitution, the founding fathers,
कि उनका क्या इंटेंशन रहा होगा कि उन्होंने ये ऑफिस बनाया और इस तरह बनाया. What must have been there, what would have been on their mind while doing so. So Dr. B.R. Ambedkar compared Indian president with the English monarch who was a rubber stamp. Ambedkar साहब का व्यू पॉइंट है ये. So he wanted the Indian president to follow the aid and advice of COM and be bounded by it. Can you tell me why? Do you know B.R. Ambedkar a bit? I mean, उनके understand. What do you think? B.R. Ambedkar president को बहुत strong क्यों नहीं बनाना चाहते होंगे? क्यों वो चाहते होंगे कि president बस एक nominal head ही रहे, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं? देखिए, B.R. Ambedkar is one. You can hear me, right? Am I audible? Is the network working fine? Am I audible? Okay. So B.R. Ambedkar has always been a person who has fought for Dalits. Apart from Dalit, ये समझ आता है कि उनकी personality ऐसी है जो people's opinion या लोगों को power देने वाले system को ज्यादा support करेंगे. तो COM जो कि लोगों के मिनिस्टर्स हैं, लोगों की जीती हुई गवर्नमेंट है बनाई हुई, जो COM कहे PM प्रेसिडेंट बस उसे फॉलो करते रहे. B.R. Ambedkar का व्यू पॉइंट ऐसा ही होगा बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द masses and he wants to give importance to the masses, to the voice of people, to the real India, right? But on the other hand, Pandit Nehru said that even if we follow the UK parliamentary system, we may not have the precise correspondence and have an office which is not automated, thus acting like a robot, right? So we are reading about personalities here. What Rajendra Prasad had said. तो ये पर्सनालिटीज जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम इधर किस लिए हैं कि व्हेन यू राइट योर आंसर, वी विल डिस्कस अबाउट आंसर राइटिंग टुमारो. आज हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए, विल डू इट टुमारो. तो जब भी हम अपने किसी आंसर को स्पेशली मेंस में लिखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ यस नो वाला ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्टिव, बट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर फॉर मेंस, योर माइंडसेट, योर पर्सनालिटी, how your brain, how do you deal with a question, that is all reflected in your subjective writing. So आंसर को जो भी आप बोल रहे हो उसकी वैल्यू तब तक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है जब तक आप अपने आंसर को एग्जांपल्स के थ्रू corroborate ना करें, right? So it is very important to mention the good personalities, famous personalities, or anything from the history, the historical perspective that supports and corroborates your answer. तो फाउंडिंग फादर्स के एग्जांपल्स इसीलिए हैं. तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला कि यूके में यूनिटरी सिस्टम है वेयर द किंग और द क्वीन आर हेरिडिटरी, बट दैट इज नॉट द केस विद इंडिया. यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होता है कि कोई प्रेसिडेंट है तो उसका बेटा भी प्रेसिडेंट होगा. दैट इज नॉट द केस. द प्रेसिडेंट हियर कम्स थ्रू एन इलेक्शन. सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी अ म्यूट फॉलोअर, है ना, कि बस चुपचाप COM की बात सुनते रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप यूके को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूके का प्रेसिडेंटशिप अलग तरीके से चलती है और इंडिया की अलग. डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी सेड टुडे पॉलिटिकल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब चाहती हैं कि हमारा बंदा प्रेसिडेंट बने. अब जब सब इस बात पे इतना लड़ रहे हैं या इस बात को इतना ध्यान दे रहे हैं कि they want their candidate to win and to get to the seat of president, इसका मतलब उस president की सीट पे कुछ तो पावर होगी, तभी इतना आर्गुमेंट है या तभी इतना क्लैश है.
तो वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प तो नहीं हो सकता है. अगर रबर स्टैम्प होता तो फिर किसी को खास फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, राइट? सो देयर हैज टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट that the political parties always want their person to come to the presidency. Then the third is from the viewpoint of judiciary. अब judiciary के point से समझते हैं. So Supreme Court in various cases, अब यहाँ पर नाम एग्जाम्पल है, डोंट वरी किस केस में क्या हुआ ये पढ़ना है, नो, जितना नोट्स में दिया है उतना ही, कि वेरियस केसेस लाइक राम जवाया, शमशेर सिंह, आरसी कूपर केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन यूके, वी हैव, बिकॉज ब्रिटिश यहाँ पर थे और इंडियंस हम बहुत अकस्टम हो चुके थे, कंफर्टेबल हो चुके थे, जान गए थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है. तो हमने अपनी मेच्योरिटी को देखते हुए कि हम 200 साल से यही सिस्टम को देख रहे हैं, इसी कंट्री से डील कर रहे हैं, तो हमने भी वही सिस्टम चूज किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट हु इज ओनली अ नॉमिनल हेड, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती है, सीओएम के पास, राइट? सो दो द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि भले ही उन्हें प्रेसिडेंट के नाम से, उनके साइन से सैंक्शन किया जाता है, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन लेता कौन है, इट इज द सीओएम. सो व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी लिखा है satisfaction of the president, pleasure of the president, वो pleasure actually में किसका pleasure है, not just the president but the COM, because every decision that the president takes, it is done on the aid and advice of the COM, right? So I will keep it till here. यहाँ से आगे कल करेंगे, because judiciary के कुछ points हैं जो explain करने हैं, and I would not like to rush through the syllabus. So I'll see you tomorrow, and please read President. We have almost completed it.